Good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. And we are here on our regular Wednesday meet. And the agenda for today is Bhakti Yoga, the path of love. So we have been talking of the various paths of yoga, union with the divine. And we have covered in various programs, we have covered the different four paths. The four paths which are very distinct is Karma Yoga, Raj Yoga, Gyan Yoga, and Bhakti Yoga. So today we are going to talk exclusively on Bhakti Yoga. Yes. So before we move on with the topic, Bhakti obviously is very synonymous with devotion, love. So that is the path that we are talking of today, Bhakti Yoga. So before I start any kind of insights and gyan on this, let us have some people share on what is your experience of Bhakti Yoga. And Bhakti Yoga is, by the way, the most common thing that comes to us as a child when we are brought up in a family. So we go to our religious places. There are designated days on which we go to a place of worship. तो फिर वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जहाँ पे भी हम जाते थे, तो उसकी हमको हमारे यादें हैं। तो बचपन से ही हमको एक लाइफस्टाइल में जैसे हम जीते हैं, उस हिसाब से हमको एक डिवाइन या गॉड से एक कनेक्शन हमारा बनता है। उस रिलीजियस प्रैक्टिस को हम बिगिनिंग ऑफ भक्ति योग बोल सकते हैं, जहाँ पे एक नेम एंड एक फॉर्म हमको दिया गया और उसके हिसाब से हमने अपनी वर्शिप शुरू की। करेक्ट? So that is how Bhakti Yoga normally comes to everybody. So if you have any different experience, and after that, once you are aware of it and you are conscious of it, then how do you pick it up? That is what we are going to discuss today. Yes? So anybody who wants to share? Simi ji? I can share, sir. Yeah. Actually, my thought process is that मैं सब भगवानों को मानती हूँ. So there was a message on the group also that day कि जैसे अगर कोई शिवा को preach करता है तो वो शिवा का भक्त ही होना चाहिए. So my point is कि भक्ति हमारे अंदर में है, स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर में है. सो मैं अच्छे कर्म कर रही हूँ, अच्छे थॉट्स रखती हूँ, दैट मीन आई एम स्पिरिचुअल. मुझे किसी भी मंदिर में जाके पूजा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरा मन साफ है. मैं अपने घर में दिया जलाती हूँ और बस थोड़ी सी पूजा करके, ओम चैंटिंग करके या ओम भूर्भुवः स्वः करके मेरा इतना ही भक्ति होती है. इज दिस फाइन? या वी शुड हैव अ डेडिकेटेड गॉड कि अगर मैं माता रानी को पूज रही हूँ तो मैं सिर्फ माता रानी को ही पूजूं? इज इट मैंडेटरी? इट इज कंपल्सरी क्या? There is nothing compulsory in the spiritual domain. We know that, right? So I will not say this is right or wrong, good or bad, mandatory or optional. ऐसा कुछ नहीं होता. आपकी जो सोल कॉलिंग है उसके हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे. नंबर वन. ठीक है? दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट फॉरमोस्ट थिंग. और हर एक की जर्नी अलग अलग है, तो हर एक की सोल कॉलिंग अलग अलग होगी. What I was mentioning is because of our lifestyle, we are drawn towards one particular lifestyle. If you're born in a Hindu family, you have a different lifestyle. If you're born in a Muslim family or a Christian family, you have a different lifestyle. Based on that, I said you will be going to different places of worship. So your introduction to bhakti starts from there. Okay. But having said that, as you grow up, you will definitely have your own calling. आपकी अपनी calling आएगी, जिसमें जैसे आपने कहा, एक भक्ति योग का बेसिक नेसेसिटी क्या है? देयर इज अ नेम एंड देयर इज अ फॉर्म, जिसको बोलते हैं साकार सगुण, क्योंकि ये माइंड के लिए जरूरी है. माइंड के लिए नेम एंड फॉर्म चाहिए, अदरवाइज माइंड कैन नॉट कंसेप्चुअलाइज समथिंग. ओके, सो व्हेन वी टॉक ऑफ divinity or when we talk of God, a name and form is important. Now it is not important what name and form are you following, but it has to invoke the divinity in you. Correct? तो कोई राम भक्त है तो कोई कृष्ण भक्त है. सिमिलरली देयर विल बी फॉलोअर्स ऑफ प्रॉफिट और जीसस, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, और गुरु नानक फॉर दैट मैटर. तो उनको फॉर नाम और फॉर्म को, या माता रानी वैष्णो देवी जा रहे हैं, कोई उसके भक्त हैं, राइट, उस नेम एंड फॉर्म से आपके अंदर डिविनिटी इन्वोक हुई या नहीं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सिर्फ बाहर के रिचुअल्स करते जा रहे हो, उससे तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट? But does that invoke the divinity in you? Does that invoke love in you? Then it is bhakti.
अदरवाइज नॉर्मली जैसे आप बोल रहे हो मंदिर में दिया जला लिया, अपने घर में जो छोटा सा मंदिर है उसमें आपने घंटी बजा दी, नहा धो के आए, घंटी बजाई, 2-3 मिनट के लिए पूजा पाठ किया और एक मंत्र बोल दिया और हाथ जोड़ के आ गए, इवन दैट इज भक्ति, करेक्ट? So you don't have to follow a particular name and form, but if you are following any name and form, that is bhakti yoga. First you need to understand that. इसको बोलते हैं साकार और सगुण. साकार means there is a name and form. Sagun means you are talking of the sattvic quality. सतोगुण, क्योंकि ऑब्वियसली गॉड है, डिवाइन है, तो सतोगुण की पूजा कर रहे हैं आप. क्यों? ताकि वो सतोगुण आपके अंदर इन्वोक हो जाए. करेक्ट? So that is the basic understanding of bhakti yoga. Now, what are you doing on that? Some people go, like if I say, talk of a Hindu family, I used to go to the temple on Tuesdays. So that was my starting of Bhakti Yoga. और वहाँ पे जो भी देवी देवताओं की आरती हो रही थी, पूजा हो रही थी, मैं अटेंड करता था, प्रसाद लेता था, प्रसाद बांटता था, वापस लेके आ जाता था, एंड दैट वाज भक्ति फॉर मी. करेक्ट? मेनी पीपल डू दैट. वी हैव डेसिग्नेटेड डेज, ट्यूसडे को Yeah, जाना है, मंडे को व्रत रखना है, कुछ लोग ये भी करेंगे, yeah. बाकी लोग कोई फ्राइडे को जाते हैं, कोई संडे को जाते हैं, है ना, डिपेंड करता है. तो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ भक्ति योग फॉर यू, बिकॉज देयर इज ए नेम एंड देयर इज ए फॉर्म, एंड बाय डूइंग वट एवर प्रैक्टिसेस यू आर डूइंग, आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं उससे आपके अंदर कुछ दिव्यता, कुछ डिवाइन क्वालिटीज इन्वोक हो रही हैं. दैट इज भक्ति. आई वोंट से योग, दैट इज भक्ति, आई वुड से. करेक्ट? क्योंकि भक्ति योग का मतलब उस भक्ति के पाथ पे चलते हुए आप वननेस में आ गए हो, डिवाइन के वननेस में आ गए हो, तब भक्ति योग हुआ. योग इज यूनियन विद द डिवाइन and bhakti is the path of love. So on this path of love you can attain oneness with divinity. That is the meaning of bhakti yoga. But initially we are just practicing some actions in bhakti. That is what we need to first look at. हम कर क्या रहे हैं और उसके पीछे का भाव क्या है. That is important to know. Intent and the intention. भाव और भावना क्या है, और उसकी वजह से अगर आपके अंदर कुछ दिव्यता आ रही है, then that is important. Correct? Simi ji, so is that clear? Yeah, got it. Very good. Let's acknowledge Simi ji. Thank you. तो नेम एंड फॉर्म होगा जरूर, और वो कौन सा नेम एंड फॉर्म है वो जरूरी नहीं, वो कुछ भी हो सकता है. राइट? यस, परवीन जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरे को और कोई अभी नजर भी नहीं आ रहा है, बाकी सबके वीडियो ऑफ हैं, सो आई डोंट नो. हाँ, तो इफ पीपल आर रेडी टू शेयर दे शुड स्विच ऑन द वीडियो सो दैट आई नो दैट यू आर रेडी टू पार्टिसिपेट. यस परवीन जी. I just feel कि bhakti yoga is the first step to the higher understanding of divinity. तो वो step लेना जरूरी है लाइफ में. मुझे लगता है we can't jump into ज्ञान at once, भक्ति नहीं होगी. तो भक्ति तो अभी भी करते हैं, ज्ञान के पाथ में है, पर भजन वगैरह मतलब कि मग्न होके भजन अभी भी मैं गाती हूँ. आई एंजॉय इट. सो जैसे भी आवाज है, उल्टी पुल्टी आवाज, पर आई सिंग. सो दैट इज, आई फील दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट साथ साथ में. ओके, आई वेरी थिंक गुड. भजन में जो भी फीलिंग्स होते हैं उसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए. कई लोग ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी बोल दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, फटाफट बोल के खत्म कर दिया. मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कोई प्रेयर भी गा रहे हैं तो वो फीलिंग्स जरूर होनी चाहिए उसके अंदर, अदरवाइज वो फॉर्मेलिटी करने वाली क्या बात हुई उसमें. फिर ये तो सिर्फ एक As I said, it has to फॉर्मेलिटी. invoke the divinity in you, divine qualities in you. तो मे भी भजन गाते गाते आपके आंखों में पानी आ जाएगा, है ना, पूरी श्रद्धा और प्यार से आपके आंसू निकल रहे होंगे, तो दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट. भजन सुनते सुनते आपको रोना आ जाएगा या गाते गाते आपको रोना आ जाएगा, तो आप भावुक हो रहे हैं उसमें, दैट इज गुड. दैट इज प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट. भक्ति, यू नीड टू अंडरस्टैंड, भक्ति योग और भक्ति इज बेसिकली क्लींजिंग ऑफ द हार्ट चक्र, बिग वे. हार्ट चक्र को अगर आपको हील करना है और क्लींस करना है, यानी कि अपने इमोशंस को, हार्ट इज सेंटर ऑफ इमोशंस, करेक्ट? तो आपके इमोशनल क्लींजिंग के लिए, इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए भक्ति इज द वेरी वेरी पावरफुल टूल, यू कैन से पावरफुल पाथ. सो whenever you are doing भक्ति, आप आरती कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आप सत्संग में जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, all this is important. All this is very very important for bhakti, because it is taking you on the path of bhakti where there is
इंटेंशन है, इमोशन है, आपकी भाव और भावना क्लियर हो रही है, आपकी हार्ट चक्र पूरी तरह से खुल जाता है एकदम से, यू फील एक्सपेंडेड, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट इन भक्ति. यस, वेरी गुड प्रवीण जी, बहुत बढ़िया आपने बताया. एंड यस सिमी जी, लेट्स एक्नॉलेज सिमी जी एंड प्रवीण जी. Good. So what we have understood in bhakti is that there is a name and a form, and the name and form can be different for each individual. There is absolutely no rule कि एक ही चाहिए, आप कई भगवानों को मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप कोई स्टॉन्च फॉलोअर नहीं है, बट आप राम जी की भी आरती कर सकते हैं, कृष्ण जी की भी आरती कर सकते हैं, शिव के भी भक्त हो सकते हैं, देवी माँ के भी भक्त हो सकते हैं. सो देयर आर मेनी फॉर्म्स विद दैट यू कैन डू. तो हमारे जैसे जब दुर्गा पूजा होती है तो वी वर्शिप द गॉडेस इन डिफरेंट फॉर्म्स, करेक्ट. जब जन्माष्टमी होती है वी वर्शिप लॉर्ड कृष्ण. रामनवमी होती है तो वी वर्शिप लॉर्ड राम. सो देयर आर डिफरेंट फेस्टिवल्स वेयर वी आर सेलिब्रेटिंग एंड वर्शिपिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ divinity, which is absolutely perfect, right? Yes. So anybody else who has any doubts on what is bhakti yoga and how it is going to move you forward on your journey? So as Parveen ji rightly said, bhakti yoga is initially very easy because that is followed in every family. Most of the families have a small place of worship. So bhakti yoga is the first thing that a child gets introduced, right? And फिर अगर कोई मंत्र वगैरह सीख लेते हैं तो उसके मंत्र का आप उच्चारण करते हैं. बाद में अगर आपने किसी गुरु से दीक्षा ली तो उस मंत्र का जाप कर रहे हैं. इवन दैट इज भक्ति योग. गेट मी पॉइंट? सो आरती, भजन, सत्संग, मंत्र जाप, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द भक्ति. आप मंदिर जा रहे हैं या प्लेस ऑफ वर्शिप पे जा रहे हैं, वहां पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं. प्रेयर इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल ऑफ भक्ति. अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये सब हम भक्ति योग में या भक्ति के मार्ग पे हम ये सब करते हैं. एवरीबडी क्लियर? भक्ति में आप कर क्या रहे हैं? Yeah. करेक्ट. Okay, good. Anybody else who has anything to share? Gunjan, you want to share something? Your experience of bhakti? My experience, सर मैं भी यही करती हूँ भक्ति में तो अपनी कि मंदिर जाना एंड माय ऑल रिचुअल्स जो हमें बचपन से सिखाया गया है वो सारे रिचुअल्स फॉलो करती हूँ. एंड भजन इज लाइक वन ऑफ माय कोर हीलिंग एस्पेक्ट. मैं उसमें ये सोचती हूँ कि कृष्ण जी या जिनको भी मैं मानती हूँ वो मुझे ही कुछ कह रहे हैं, मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं. तो मेरे लिए तो एक भजन भी एक डिस्कोर्स की तरह मैं लेती हूँ उसको. Perfect. Very good. So when you are doing some prayer, जब आप कोई भक्ति का भजन कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं अपने इष्ट देव से. इष्ट देव बोलूंगा जो भी आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, ठीक है ना. Now this is very important because how you are connecting with your divine, that is very important in bhakti. तो भक्ति के जो भक्ति योग के अलग अलग मार्ग जो बताए उसी के सब पार्ट्स जो हैं उसमें काफी चीजें बताई गई हैं कि किस हिसाब से एक भक्त अपने भगवान को याद करता है. करेक्ट. सो मेथड्स आपके जो भी हो सकते हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं जो हमने अभी डिस्कस किया, लेकिन भक्ति योग की जो भाव हैं, अलग अलग भाव हैं, तो भाव क्या क्या है एक बार उस पर नजर मार लेते हैं. एंड देन वी विल गो ऑन इन डिटेल्स लेटर ऑन maybe in the next session. ठीक है. तो सबसे पहला है, जैसे हमने अक्सर सुना हुआ है कि जैसे आत्मा जो है, हम आत्मा जो सोल है, सोल इज कंसिडर्ड टू बी चाइल्ड ऑफ गॉड. करेक्ट. तो आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है और परमात्मा के बच्चे हैं. तो हम क्या बोलते हैं, हम परमात्मा को कैसे मानते हैं कि वो हमारे माता पिता हैं. राइट. जस्ट लाइक ऐसे ह्यूमन बॉडी में हम हैं तो हमारे बॉडी के लिए हम जानते हैं हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, वैसे ही आत्मा के लिए हम मानते हैं कि आत्मा का एक परम पिता परमात्मा है और जिनको हम परमात्मा मानते हैं तो हम आत्मा है, तो वी आर सन ऑफ गॉड. तो हाउ यू रिलेट टू द गॉड इज लाइक पेरेंट्स. दे आर माई पेरेंट्स एंड आई एम देयर चाइल्ड. मैं उनका प्यारा बच्चा हूँ, उनका वर्दी चाइल्ड ऑफ गॉड. आई एम ए ब्लेसेड चाइल्ड ऑफ गॉड. सो यू आर कंसिडरिंग योरसेल्फ एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड. दिस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप दैट यू कैन हैव इन ए भक्ति. तो आप भगवान को माता पिता के हिसाब से उनको वर्शिप करते हैं. करेक्ट.
उसमें काफी चीजें हम बोलते भी हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सुना होगा आपने जैसे बचपन में, करेक्ट। या त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो उसमें हम हर तरीके से भगवान को वर्शिप कर सकते हैं। तो पहला जो प्रोमिनेंट है भाव वो क्या है, माता पिता का, जिसमें हम भगवान को अपना परम पिता मानते हैं, करेक्ट। या देवी माँ को मतलब डिवाइन फेमिनिन को हम कैसे मान रहे हैं, शक्ति को माँ शक्ति, तो माँ दुर्गा, माँ काली, सो वी आर वर्शिपिंग डिवाइन एज द मदर, एज द होली मदर। क्लियर है ये। तो एक हो गया माता पिता के हिसाब से हम उनको वर्शिप करते हैं। दूसरा, हम उनको वर्शिप कैसे करते हैं, अब जैसे कृष्ण गोपाल हैं, कैसे हम उनको मानते हैं, छोटे से कृष्ण आए हैं, हम उनको वर्शिप कर रहे हैं, कैसे, तो बच्चे की तरह। तो नाउ यू आर बिहेविंग लाइक ए पेरेंट एंड देन यू आर लविंग द गॉड एज योर चाइल्ड। तो वात्सल्य का भाव आता है इसमें। बट आप पेरेंट हैं और आप लड्डू गोपाल को या श्री कृष्ण गोपाल को, छोटे कृष्णा को आप वर्शिप कर रहे हैं, यस। तो माखन चोर जो भी आप भजन कर रहे हैं, जो भी आप स्टोरी सुन रहे हैं, उसमें पूरी आपका वात्सल्य छलक रहा है, आपका प्यार छलक रहा है बच्चे के लिए। क्लियर है ये। तो भाव अलग अलग हैं, कनेक्ट विद दिस। जब आप भगवान को माँ बाप की तरफ से देख रहे हैं तो वो अलग भाव है, जब बच्चे की तरफ प्यार कर रहे हैं तो वो अलग भाव है, करेक्ट। एक और भाव है जो हम भक्ति योग में देखते हैं, वो क्या है, मैत्री भाव, फ्रेंड, सखा, करेक्ट। और हरे के बहुत उदाहरण है हमारे पास, हम धीरे धीरे उन उदाहरणों पे आएंगे जब हम इनके एक एक स्ट्रीम को पकड़ेंगे। तो उसमें आप भगवान को एक सखा के रूप में देख रहे हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे रूठ सकते हैं, उनको मना सकते हैं, उनके लिए उनको जैसे भी आप उनको बुलाना चाहें या उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके सखा हैं। फ्रेंड से हम कैसे बात करते हैं, हम सब कुछ बताते हैं उनको, तो आप सब कुछ बता सकते हैं अपने भगवान को, उनसे गाइडेंस भी मान सकते हैं, उनसे रूठ भी सकते हैं, उनको मना भी सकते हैं, करेक्ट। क्लियर है ये। तो ये मैत्री भाव होता है। तो भक्ति में एक भाव माता पिता को हो गया, एक हो गया बच्चे के लिए, अपने बच्चे जैसे आप उनको प्यार करते हैं। तीसरा हो गया मैत्री भाव। क्लियर है। चौथा, और वो बहुत प्रोमिनेंट है जो, वो क्या है, एज योर लवर। सो यू आर लविंग गॉड एज योर पार्टनर ऑफ लाइफ, करेक्ट। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल मीराबाई। So when Mirabai was in love with Krishna, that was a complete devotion, भक्ति। जबकि वो कंटेम्परेरीज भी नहीं थे, पता नहीं कितने 100-200 साल पहले या 500 साल पहले, 1000 साल पहले श्री कृष्ण आए और चले गए, एंड मीराबाई केम आफ्टर दैट, आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, बट देन शी वाज इन लव विद कृष्ण। तो एज ए लवर शी वर्शिप कृष्ण, करेक्ट। सो यू कैन वर्शिप डिवाइन एज योर पार्टनर, as your love, and that is very very profound, by the way. So you are loving your God as your partner, correct। ये चार भाव बहुत प्रोमिनेंट है ह्यूमन रिलेशनशिप में। एंड वन मोर भाव जो बहुत कॉमन है, जो हनुमान जी जैसे भक्ति में जाते थे, तो यू आर वर्शिपिंग योर लॉर्ड as he is the ultimate master and you are the servant, करेक्ट। तो इसमें कैसा भाव आ गया कि मैं तो आपका दास हूँ, तो दास भाव आ गया इसमें कि आई एम योर सर्वेंट, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू एंड आई एम हियर ओनली टू डू एवरीथिंग फॉर यू। तो फुल सरेंडर के साथ आप दास्य भाव में अपने भगवान को याद करते हैं और उनकी पूजा कर वर्शिप कर रहे हैं। क्लियर है ये। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस हैं। तो भक्ति के अलग अलग भाव हैं जो हमको पहचानना है। अब आप देखिए कि आप जब भक्ति मार्ग पे हैं तो आप कौन से भाव को लेके कर रहे हैं, करेक्ट। इट डजंट मैटर which form are you considering, but all the forms are available। आप कौन से भाव को लेके भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, you should distinguish it for yourself, very very important। why this is so why this is so क्योंकि भक्ति योग का असली इंपॉर्टेंस कब है, बताइए, कौन बताएंगे। इस भाव को समझना और डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है। टेल मी व्हाई।
एनीबडी? जब हम परेशान होते हैं या दिमाग में बहुत चीजें हो रही होती हैं उस टाइम पे शायद एक भक्ति योगी है जिस हम सबसे वी रिमेम्बर गॉड सबसे पहले, ओ गॉड। यानी कुछ ना कुछ तो कनेक्ट है कि जब हम परेशान होते हैं हम भगवान को क्यों याद करते हैं। तो कैसे याद कर रहे हैं आप उस समय? किस भगवान के किस भाव को याद कर रहे हैं? दोस्त की तरह, पिता की तरह, बेटी की तरह, या लवर की तरह, या फ्रेंड की तरह? कैसे, कौन से भाव से आप भगवान को याद करते हैं अक्सर? दैट विल डिस्टिंग्विश द काइंड ऑफ भाव you have when you are doing bhakti, and why that form. If you are clear on this, it will help you a lot. भगवान की तरह से, व्हाई डू वी अरे गिव अ भाव कौन सा है? रिलेटिव। बता, भगवान तो हैं। हाँ, अब भगवान कौन के से लिए भाव भाव से नहीं कर हो रहे हो सकता है। उनको? यू आर लविंग वर्शिपिंग गॉड इन विच भाव? कौन से इमोशन है? उसी हिसाब से आपका इमोशनल सखा। हार्ट जो है वो हील होगा। एज ए फादर, यस, रूपा सेज एज ए फादर। तो परमपिता परमात्मा की पूजा कर रहे हो आप, वर्शिप कर रहे हो, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कि जैसे शिव बाबा मुझे बचा लो, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बचा लो ही तो बोलते हैं ना सबसे पहले। तो सबसे प्रोमिनेंट फॉर्म आपके भक्ति का क्या है? परमपिता परमात्मा को याद कर रहे हो आप। सो यू आर वर्शिपिंग ए गॉड हु इज प्रोटेक्टिंग यू. You are worshipping a God who is going to guide you and save you from all the troubles. That is the kind of God you are worshipping. Okay, Mani says as a guru. As So as a I guru take him means, as a guru, as a teacher, as a friend. yeah, Whenever नहीं कोई भी नहीं, भाव जब मुझे सब कुछ चाहिए। मत करो, एक पर्टिकुलर पकड़ो. As a guru means somebody who is guiding you. So you want guidance from ऐसे the भी होता divine. है सर कि जो Hold on. भाव First आपका listen. होता है। First listen. Okay. गुंजन जी, let me first distinguish. जब आप परमपिता परमात्मा की बात कर रहे हो तो मैंने कहा you are asking for protection. Correct? You are asking for support because you feel you are powerless, you need power, you need support, you need help, you need guidance. तो आप परमपिता परमात्मा को याद कर रहे हो कि हे भगवान मुझे बचाओ, या मैं फंस गई हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ. तो दोनों में, चाहे वो ऐसे गुरु हो या ऐसे परमपिता परमात्मा हो, आप फादर फिगर को याद कर रहे हैं सो दैट यू कैन बी सेव्ड फ्रॉम द ट्रबल्स इन लाइफ. सो योर भाव क्या है? यू आर इन ट्रबल, यू वांट टू बी सेव्ड, so he is a savior for you. Get that? Now गुंजन जी, when you said, क्या कहा आपने? कौन सा भाव है आपका? फ्रेंड। फ्रेंड. तो ऐसे फ्रेंड क्या है? आप ऐसे फ्रेंड उनको सारी कहानियां बता रहे हो अपने, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, क्या होगा, मैं बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी कहानियां, रोना धोना सब कुछ कर रहे हो उसके साथ. करेक्ट? एंड देन व्हाट आर यू सेइंग? आप गुस्सा भी हो जाते हो, इतने दिनों से तुमको बुला रहा हूँ, तुमने कुछ नहीं किया, आई एम इन ट्रबल नाउ, काइंड ऑफ थिंग. So you can be angry with God. Yes, you can be angry with your friend. वो अलग भाव होता है. ओके, नाउ कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? कोई स्क्रिप्चर्स में किसी से अगर सुना हो आपने, साख्य भाव कहाँ पे आता है? कौन सी स्टोरी में अर्जुन आपने एंड सुना? कृष्ण। अर्जुन एंड कृष्ण. कृष्ण एब्सोल्युटली ग्रेट, फैंटास्टिक. So you need to understand this. Now Lord Krishna is the ultimate divine, correct? But he was occurring to Arjun as his friend, childhood friend. And there is a very great story of once Bhishma, पितामह भीष्म जो हो, एक बार पांडवों के शिविर में जाते हैं मिलने के लिए, बात करने के लिए श्री कृष्ण से. तो वो देखते हैं कि वहाँ सारे लेजेंडली आराम से बैठे मजे कर रहे होते हैं. तो ही सीज दैट अर्जुन हैज प्लेस्ड हिज लेग ऑन कृष्णा, और वो मजाक में उसके पाँव को हटाने की कोशिश करें, वो फिर से वापस उसके ऊपर पाँव रख देते हैं. तो भीष्म ने वो देखा, तो जो डिस्कस करना था किया, वो देखा, एंड देन ही वेंट बैक एंड ही टोल्ड दुर्योधन, यू कैन नेवर विन दिस वॉर. क्योंकि वो जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, वो उनके साथ बिल्कुल सखा भाव के साथ खेल रहे हैं वो. तो ऐसे ऐसे इंसान को तुम हरा ही नहीं सकते. ही इज ट्रीटिंग गॉड लाइक हिज फ्रेंड. तो ही इज ऑन द पाथ ऑफ धर्म एंड गॉड इज देयर एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट देम. तो भूल जाओ इस बार को. सो ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, बट देन वो साख्य भाव है व्हेन यू आर कंसिडरिंग लॉर्ड एज योर फ्रेंड. करेक्ट? तो आप हंसी मजाक भी कर सकते हो, अपनी सारी खुशी की बात भी बता सकते हो, अपने दुख की बात भी बता सकते हो. उससे क्या होगा? आपका हार्ट हल्का हो जाएगा.
you will be absolutely free of all the burdens of the heart. And you are saying all that with the intention कि सब कुछ अब बता दिया तो अब सब handle हो ही जाएगा. That is a belief. So that is a faith. Bhakti is all about faith and devotion and surrender. Correct? तो ये मैत्री भाव हो गया. Correct? And then you are looking at वात्सल्य. अब छोटे कृष्ण, माखन चोर कृष्ण को विजुलाइज करो. हाँ, वो दौड़ रहे हैं, मटकी फोड़ रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं चुरा के, and then you are full of delight. We are blissful seeing that divine form of गोपाल कृष्ण. कौन सा इमोशन आ रहा है यहाँ पे? You are full of love and full of bliss seeing that divine form of the child. Clear है? वात्सल्य. So this is the bhakti yoga where you are full of love for the child. Get that? And of course, हमने चौथा भाव देख ही लिया. When you are treating the God as your lover. So इसके examples बहुत rare हैं, but there are definitely you can consider that as a Ram and Lord Ram and Devi Sita, correct? So where they were absolutely full in love for each other. Or you can have that Mirabai and Krishna. हाँ जी, तरुण जी. यही मीराबाई and Krishna. Mirabai, correct, absolutely. Mirabai and Krishna. Yes. So as a lover, so that is complete surrender and love. समर्पण है, प्यार है, प्रेम है, and full devotion and trust and respect. So that is part of when he says yeah. So you can have different emotions, but then you should be able to identify what is the emotion that is filling up your heart, because that will help you to heal your heart better, because when you're aware of it, that intensity increases. That's all I'm trying to say. Okay? If you're not aware of it, then the intensity reduces and the healing may not happen. So Bhakti Yoga is a great form of healing your heart, your emotions. You have to understand that first. ठीक है जी? Yeah, good morning. And of course, जो last है, last नहीं है, बल्कि उसमें हम काफी जगह पे हम ये देखते हैं, जैसे when you worshiping your Lord as you are the servant. तो best example तो उसमें हनुमान जी का ही है. हनुमान जी, he was worshipping Lord even before he had met him. He knew his whole life was about worshipping and serving Lord Ram, and he was waiting for him to come. Correct? So that is the worship of you're worshipping God as if you are a servant doing the job. So these are the different forms or emotions of bhakti. Everybody clear on this? Any doubts? Any doubts? Now, what is the significance of this? आपकी लाइफ में इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? What is the importance of bhakti? When you are worshipping divine in different forms of humans, जैसे आपने divine को worship किया as a father, as a son, as a friend, correct? As a lover. Now, what is the significance of this? When you have this kind of bhakti, you will be able to divinize your human relationships. How are you going to, if you see if you worship the divine as a Parampita Paramatma, correct? That means divine father or divine mother. How are you going to relate to your father and mother? There will obviously be an element of divinity in your relationship with your parents. You will see divinity in them. Even if they are humans, you can divinize your human relationships. Yes or no? Am I making sense? Yeah. When you are worshipping, you can say Gopal Krishna. When you see your child, can you divinize your relationship with your son or your daughter or your children? क्या उनमें आपको भगवान दिख सकते हैं? अगर आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं as a child, then you will have some kind of divinity when you are interacting with your children. So Bhakti Yoga is a very powerful way of
divinizing your human relationships. Your relationships can transform like crazy if you are actually invoking the bhakti in you. Correct? मैत्री भाव से अगर आप भगवान को वर्शिप कर रहे हैं तो क्या होगा? You will see divinity in your friends. If you are worshipping divine as your lover, then you will see divine in your partner. I'm not saying immediately divine हो जाएंगे पूरे के पूरे, नहीं, बट एक धीरे धीरे एक परसेंटेज करके इंप्रूव होगा. जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका हार्ट फुल ऑफ लव होगा, you will be able to radiate that love to the partner and you will see some amount of divinity increasing in your love for your partner. And बॉलीवुड में था ना एक, कौन सा था? I always say Bollywood is spiritual. तो कौन सा था? तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं. Correct? So you are seeing divinity in your partner and you are absolutely helplessly in love with your partner. Possible? Yes, possible. That is the manifestation of Bhakti Yoga in your human relationships. Making sense? How many of you are getting the essence of this? So Bhakti Yoga सिर्फ ये नहीं है कि भक्ति योग अलग कर लिया और वापस आके एक दूसरे को मार काट कर रहे हो लाइफ में. नहीं, तो भक्ति योग का आपने कुछ भी नहीं फायदा किया. भक्ति योग का सिग्निफिकेंस ये है कि इट शुड बी डिविनाइजिंग योर ह्यूमन रिलेशनशिप्स. करेक्ट? तो पेरेंट्स के साथ ठीक है, बच्चे के साथ ठीक है, फ्रेंड के साथ ठीक है, लवर के साथ ठीक है. ओनली प्रॉब्लम इज व्हेन इट कम्स टू दास्य भाव. दास्य भाव में आप जैसे ऑफिस में काम कर रहे हो एंड यू हैव टू सी डिवाइन इन योर बॉस, नॉट पॉसिबल. हाँ, नॉर्मली दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू से. मैं कहा मेरा बॉस हिटलर है, हिटलर था, हिटलर रहेगा, उसको गोली मारनी है. तो देयर इज नो वे आई कैन सी डिवाइन इन माय बॉस और माय CEO और MD. नहीं, इन सबको तो गोली मार देनी चाहिए. दे आर नॉट वर्थ लिविंग ऑन दिस प्लैनेट. तो इतना गुस्सा अगर अंदर है, दैट मीन्स हार्ट इज नॉट हील्ड. वेरी सिंपल. करेक्ट? एंड दैट्स व्हाट माय कोच टोल्ड मी दैट अगर तुम भक्ति योग प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि भजन गा रहे हो और आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो तुम्हारे भक्ति योग में ये वाला भाव है ही नहीं, दास्य भाव है ही नहीं. तो भक्ति योग के हर भाव को अंदर अपने लाओगे तो आपके लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ट्रांसफॉर्म होने लग जाएंगे. Try to understand what I'm trying to say. Very very powerful. तो मैं भगवान को डिवाइन फादर, डिवाइन मदर मानता था. माय रिलेशनशिप विद माय पेरेंट्स ट्रांसफॉर्म. आई यूज्ड टू सी divinity of Gopal Krishna. So my relationship with children used to transform. As a friend, it used to transform. As a lover, yes, it got transformed. Right? But when it came to authority, when I am supposed to act like a servant, like if I am serving somebody, it is like a servant, right? तो मेरे को डिस्टिंक्शन ये मिली कि जब तक मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, यानी कि ऑफिस में या फिर क्लाइंट के लिए या फिर किसी के लिए भी, वहां पे ये एस्पेक्ट नहीं आ रहा. दैट मीन्स आई नीड टू मूव अवे फ्रॉम दैट प्लेस. मेरे को वहां डिविनिटी नहीं दिख रही है तो मेरे को वो काम करना ही नहीं है. I will only work where I can see divine in others. Otherwise, I will not do that work. And slowly I moved away from whatever I was doing to a place where I could see divine, I could work with divine, I could see divine, and I could send that divine energy to everybody. And that is why I decided I'm going to do this healing work for the rest of my life. Because here I'm dealing with divine, I'm sending divine healing energy to everybody, and I can see divine in the healings. So now I am serving people, seeing divine in them. तो दास्य भाव का भी भक्ति वाला इमोशन आ गया. जब ये सारे इमोशन आ जाते हैं, यू कैन रेस्ट एश्योर्ड योर हार्ट विल बी कंप्लीटली हील्ड, फुल ऑफ लव, एंड यू विल बी एबल टू डिविनाइज योर रिलेशनशिप्स. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ भक्ति. हाउ मेनी ऑफ यू कैन कनेक्ट विद व्हाट आई एम सेइंग? यस, इट इज टफ. यस, इट इज टफ. इट विल टेक इयर्स टू प्रैक्टिस इट. और सबसे ज्यादा जो मुश्किल है उसको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो. जो आसानी से हो रहा है उसको तो कंटिन्यू करोगे ही करोगे, लेकिन जो नहीं हो रहा, आपको लगता है ये तो हो ही नहीं सकता, जैसे मैंने कहा था कि ये दास्य भाव वाला तो इम्पॉसिबल है, वहीं पे प्रैक्टिस करनी है. ब्रेक थ्रू वहीं मिलेगा आपको और वही आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएगा. दैट इज कमिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. यस, ओके, नाउ आई विल स्टॉप फॉर अ लिटिल बिट एंड लेट मी हैव सम शेयरिंग. व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ दिस
discussion from this session, क्योंकि ज्ञान इतना ही है आज के लिए, मैं इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा अभी. So whatever is opening up for you, whatever is coming to you as an insight, you can share that. And if you have any doubts or questions, you can ask that. So let me see who all are there. Parina ji, Rupa, Tarun ji, Mani, and Pushpa ji, namaskar. Yes. Anybody who wants to ask or anything, or if you want to share something, go ahead. कौन बोलना चाहेंगे? या I'll just share कि ये बहुत awareness आपने कर दी है कि भक्ति में what relationship do I have with my God, and while you were talking I started thinking what relationship do I have when I worship, when I sing. So वही I felt him like a friend, क्योंकि मैं उनको डांटती गुस्से भी होती हूँ कि ये क्यों हुआ और मांगती भी हूँ उससे उनसे. So that was a big opening for me, suddenly it got. Thank you very much. Very good, very good. That is awareness, because you should know when you are worshipping divine, what is the emotion, because ultimately bhakti yoga is only to transform your emotion, your heart chakra. आपको हार्ट चक्रा को पूरी तरह से लव के साथ भरना है, ट्रांसफॉर्म करना है, उसको हील करना है. वो तभी होगा जब आप भाव को समझ पाएंगे, अपनी भावना को समझ पाएंगे. करेक्ट. बहुत बढ़िया प्रवीण जी, वेरी गुड. लेट्स एक्नॉलेज प्रवीण जी. यस सिमी जी. बट सर ऐसा भी हो सकता है कि कभी हम किसी भाव से करें, कभी हम किसी भाव से करें. मैंने कहा तो सारे भाव जरूरी हैं, सारे भाव को इन्वोक करो. कोई भी कर सकते हैं किसी भी टाइम पे. यस यस, यू शुड प्रैक्टिस ऑल. जस्ट चेक आप सारे कर रहे हो कि नहीं. अगर कोई नहीं कर रहे हो तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए करना. अभी जो हमने 5 भाव देखे उसमें से कौन सा नहीं कर रहे हो, पहले तो वो टिक करो कि ये करना ही है, एंड देन ब्रिंग दैट इनटू द प्रैक्टिस. ओके. Okay. So that is important. And then when we do Havan, Hmm. Havan is again, there is no God, there is no photo, कुछ किसी को भी रख के हम नहीं करते. हम सिर्फ हवन कुंड के अंदर में थोड़ी सी सामग्री डाल के आग लगाते हैं. आप कौन सा यज्ञ कर रहे हो? महामृत्युंजय यज्ञ है तो यू आर वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा. अच्छा. गायत्री मंत्र कर रहे हो तो गायत्री देवी को आप आवाहन कर रहे हो. हर मंत्र का, हर यज्ञ का एक देवी देवता है, ओके. या डेमी गॉड्स हैं कम से कम. अग्निदेव को तो आप बुला ही रहे हो. अगर यज्ञ या होम कर रहे हो तो अग्निदेव को तो है, आहुति दे रहे हो. किसको दे रहे हो आप? यू आर प्लीजिंग द गॉड्स. प्लीजिंग द गॉड फॉर व्हाट? फॉर फुलफिलिंग सम डिजायर. राजसिक है ये सब. I'm not saying it is bad. This is telling you what it is. So you are invoking a divine. Definitely you are invoking divine, and you are invoking divine as a need fulfillment. आप किसी अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, किसी डिजायर की पूर्ति करने के लिए आप देवताओं का आवाहन कर रहे हो. Okay? So you are as a God, as a protector, God as a provider, God as a sustainer. तो अब GOD को ही आप कर रहे हो, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर. उसी के लिए आप भक्ति कर रहे हो. करेक्ट. तो गॉड इज देयर एज ए प्रोटेक्टर फॉर यू. उस केस में परमपिता वाला कैटेगरी ही है. यू आर आस्किंग फॉर सपोर्ट, यू आर आस्किंग फॉर पावर, यू आर आस्किंग फॉर फुलफिलमेंट. ठीक है जी. So if we worship Mata Rani, it is our mother. Yeah. If we worship, it can फादर be. मदर ही सेम. फादर मदर सेम है. ये आप प्रोटेक्शन मांग रहे हो. अच्छा अच्छा. आप प्रोटेक्शन मांग रहे हो कि मैं आपका प्यारा बच्चा हूँ, मुझे बचाओ, मुझे अपनी गोद में ले लो, काइंड ऑफ ए थिंग. राइट. You are asking for protection, you are asking for guidance, you are asking for power, you are asking for need fulfillment. जैसे एक बच्चा अपने मम्मी पापा की गोदी में चढ़ के बैठता, मेरे को चॉकलेट दो, मेरे को चॉकलेट का डब्बा दो. तो यू आर आस्किंग फॉर समथिंग. अब वो आप उसे यज्ञ में मान लो, होम में मान लो, प्रार्थना में मान लो, जो मर्जी मान लो, यू आर आस्किंग. करेक्ट. यू आर आस्किंग फॉर द गॉड एज ए जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड थॉट सिमी जी. गुड अंडरस्टैंडिंग. यस यस परिणा जी, वेलकम. लॉन्ग टाइम. बताइए. थैंक यू शशि जी. मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने कहा ना कि जो भाव आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो अभी तक, तो दैट इज द होमवर्क. बट आई डिडंट अंडरस्टैंड कि जैसे
for years that you have had a relationship with your God in one certain way, जैसे फादर फिगर हैं या आप जैसे उनको मानते हैं, ये जो बाकी के भाव हैं, ये मतलब हाउ डू यू एक्सपीरियंस देम इन द सेंस, हाउ डू यू पुट दैट इन योर, मतलब वो कैसे होमवर्क करना, कैसे उनको कैसे वो उजागर करना है? क्यों आप माखन चोर कृष्ण की पूजा नहीं करते? You don't love Krishna when you see a small Krishna running around and eating and stealing butter शशि and जी, all वो that. हमारे साथ वो होता है ना, वो तो फिर स्पेसिफिक डेज पे होता है ना, लाइक जैसे You मतलब can आप, always visualize them ना, any day. हाँ, गोपाल कृष्ण को विजुलाइज कर सकते हो, तो राइट, यू और वात्सल्य का भाव आ गया ना. You can see that divinity in your children, राइट, so that you are invoking that divine feeling within you. ओके, Correct. Similarly, you can have that feeling of your friend. A friend, आप सब कुछ बता रहे हो भगवान जी को बैठ के, रोना भी सुना रहे हो, अच्छी खबरें भी बता रहे हो, आज मेरा प्रमोशन हो गया, आज मेरे को बहुत खुश हूँ, चलो करेक्ट, मिठाई खाओ, मैं आपके नाम से इतने लोगों को मिठाई खिला रही हूँ, खाना खिला रही हूँ, ये वो सब बातें कर रहे हो आप, ट्रू, उससे तो सखा भाव हो गया. ट्रू, Get that? So understand which bhav is missing, in the sense that maybe the, in my case, the dasya bhav was missing. That is what I found out. So you see what is missing for you, and you serve the divine in that way. सर्व द डिवाइन का मतलब कि अगर दास्य भाव मिसिंग है तो आप बोलो कि मैं सर्व करूंगी किसी को भी. अब जैसे गुरुद्वारे में जाके लोग सर्व करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, भूल जाते हैं वो कौन है. मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे कंपनी के, वहां जाके जूते साफ कर, जूते पॉलिश कर रहे हैं, वो बर्तन धो रहे हैं, वो तो सर्विस कर रहे हैं ना. तो हाउ डू यू वांट टू सर्व द ह्यूमैनिटी? यस, तो यू सी डिवाइन इन ह्यूमैनिटी एंड यू सर्व देम, तो दास्य भाव भी आ गया. तो दास्य भाव से आप भगवान की पूजा कर रहे हो. इन्वोक ऑल द भाव एंड सी हाउ फुल्ली फिल्ड योर हार्ट विल बी. वो हार्ट फिर कभी नहीं टूटेगा. That means that heart will never break. It will become foolproof. It has all the emotions of divinity. That is what I meant, right? गॉट इट, Very good, थैंक very यू. good, Parina ji. Let's acknowledge Parina ji for our query. Yes. Anybody else who has any question? How do you benefit from the bhakti yoga, bhakti bhav? And by the way, भक्ति के ऊपर और डिटेल्स में जाएंगे. अभी मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा था कि ये हम करते हैं प्रैक्टिस में, और उसका भाव ये है. We will see in more details with more examples and how you can invoke the different qualities of bhakti yoga that we will see later. So how do you invoke compassion, devotion, forgiveness, contribution? All these are different forms of love. So how do you experience and express different forms of love in different areas of your life? That is what is the expression of bhakti. So we will see that in the next session. Yes. But today, anything else that you want to ask or anything else you want to share? Tarun ji, Anirudh ji, Mani, if you want to ask something, please go ahead. No sir, I mean मैं just सुन रही हूँ, analyze कर रही हूँ and just trying to figure out मतलब यही है कि I have different bhavs for different deities. So when it comes to Mata Rani, I have Mahavali feeling, you know, as you said, protection. If I talk about Mahashiv, yes, again. But with Kanaji, it is like I have made him my guru. So हाँ ये कह सकते हैं कभी कभी सखा and guru just to guide me towards the path. So I think the bhavs keep on changing also. Yeah, it will change. So you should ensure that you are having all the bhavs, all the 5 major bhavs. ये जरूरी है. Because then you will ensure that you are healing all the aspects of your heart, emotions. So if I say कि मैत्री भाव या वात्सल्य या as a beloved, आपको मतलब क्या ऐसा भी है कि जो चीज आपकी लाइफ में मिसिंग है वही चीज से उनको उस भाव से देखते हो, कहना क्या ये सही रहेगा? ये सही नहीं होगा, but the way you have to understand is maybe that is a trigger for you. That is fine. Trigger can be anything, right? तो अगर नहीं है कोई beloved, and then if you want to worship your Lord as your beloved, so it can fill the void in you. That is definitely okay. That is perfect. But the fact is that you will be able to heal that emotion. Your heart will be full of that emotion where you are overflowing with love for your beloved, which is okay, which is perfect. So heart will be healed, and then the right person will materialize. Okay sir, ठीक है sir, thank you so. तो आपके अंदर जो hurt रहेगा या regret रहेगा कि हाय मेरी life में कोई नहीं है, अब मेरा क्या होगा, kind of a thing. So fall in love with divine. Human beings are not worth falling in love anyway.
right? So you first fall in love with divine, then the divine will send you the right person with whom you can enjoy the rest of your life. Look at it that way. Okay? Thank you. Yeah, sometimes I have to be blunt to explain, right? But don't take it literally. Yeah, I didn't mean that. So you better enjoy whoever is your partner, see the divine in them and enjoy your life. That is the right way. All right, good. Let's acknowledge Maniji. Yes. Anybody else who has anything to share? Anirudhji, Tarunji, Rupa, Devesh, and Shailendra Insurance. Okay. कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में, कुछ बोलना चाहेंगे? How was the session for you? Anything that is opening up, please go ahead. We still have some time, so I can take more sharings. Anybody who has anything to share? Yes, Rupa. Okay, welcome. Great. You're on mute. Rupa, you're on mute. बचपन से हमें सिखाया जाता है कि फादर फिगर होते हैं, पिता परमेश्वर, लाइक वी से, करेक्ट? सो एज आई ग्रू अप आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ माय डैड. तो जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे, और बचपन में कोई गल होता, पंजाबी में बोलो ना, जब बचपन में भी कोई बात होती है तो बाबा जी प्लीज पास करा देना, बाबा जी, यू टॉक दैट वे टू द लॉर्ड. एंड जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे ही डैड के साथ भी मेरा रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता गया, एज अ फ्रेंड होता गया. कोई कॉलेज में अगर कोई लड़का भी पसंद आता था तो डैड को बोल देती थी कि डैडी वो मैंने बहुत पसंद आ गया, बहुत स्मार्ट आ गया, दैट काइंड ऑफ अ रिलेशन आई हैड. सो देयर वाज नथिंग टू हाइड फ्रॉम माय डैड और मॉम. तो वही रिलेशनशिप मेरा गॉड से भी बन गया. कोई ऐसी बात ही नहीं है जो कि मैं बोल नहीं सकती. So whatever has happened in my life, there are so many instances and so many miracles that had happened. मैंने वही बोला, बाबा जी अगर तुम्हारी मर्जी, अगर तुम चाहते हो ना कि मैं झाड़ू पोछे लगाऊं तो मैं लगाती हूँ, कोई बात नहीं. फिर क्या हुआ? यू वांट इट ना. लाइक माय डैड को अगर मैं नहीं, मेरे को चाहिए लाइक लाड में अगर कोई चीज चाहिए तो लाड भी किया है मैंने. सो एग्जैक्टली सेम रिलेशन आई हैव shared with the Lord. अगर कोई चीज चाहिए, बाबा जी मैंने नहीं पता, मेरे को चाहिए ही चाहिए ये. 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 6 महीने बाद मेरे को वो चीज अपने उस पे मिल ही जाती थी. सो I have a very nice relation mentally. मैं अपने अंदर कह सकती हूँ कि with the Lord as a father figure करके. Yeah. Very good. So pretty much everything, I can talk to him about everything. कोई काम पे भी कोई चीज है तो बाबा जी देख लो, इज्जत दा सवाल है, तुसी देखना I है. got that. ਤੁਹਾਡੀ I ਇੱਜ਼ਤ got है. that. So father Yeah. figure है, mother figure का क्या है? वात्सल्य कहाँ है? बेटे के लिए क्या है? बच्चे के लिए? मदर सर्विंग फिगर. है, सखा है, वो दिख गया मेरे को. हाँ. मदर फिगर भी है, because I love him to death. I mean I'm like प्यार आता है. Okay. Good. Very So, good. What about Vatsalya? See, you have to see what is missing. I'm just giving you some hints. yeah. तो वात्सल्य के लिए ढूंढो कुछ. Do you love God as your child? As my child, नहीं, वो फीलिंग नहीं आती है. तो वो करो, वो मिसिंग है. Bring that and see गॉड how को your मैं heart gets चाइल्ड, full. गॉड को मैं चाइल्ड कैसे करूं? चाइल्ड को मैं देख सकती हूँ एज अ गॉड, पर गॉड को मैं चाइल्ड कैसे करूं? गोपाल कृष्ण का नाम सुने? या माखन चोर. कृष्ण जी है मेरे पास. तो उनको विजुअलाइज करो, see the divine in that and see divine in every child. Simple है. And you can easily see divine in your child. Why not? Yeah, that is true, but my question was how to see God. गोपाल कृष्ण को विजुअलाइज करो, और क्या करना है? यही तो बता रहा हूँ. फोटो अच्छा लगाओ अच्छा, as a उनकी. child. Okay, that is there. Yeah, okay, माखन got चुरा you. के खा रहे हैं वो देखो. And fill Yeah, yourself got with you. love and see that divinity in child. Got what you were saying. Yeah, simple है, बहुत simple है. Yeah. So you will heal all the aspects of your heart. That's all I'm trying to say. Correct? Yeah. Because your heart has to be healed. It has to have all the shades of emotions which you can experience. And if you're not experiencing some emotion, you better experience it with divinity. That's all I'm trying to say. Because Bhakti Yoga means this. Rest is all some stories that you have, some concepts that you have made up in your mind. Unless your Correct. Bhakti Yoga, Bhakti Marg or Bhakti practices do not heal your heart, you are wasting your time, I would say. It should heal your heart, no matter what. Then Bhakti Yoga is helping you to
move forward in your spiritual journey. Correct. And most of the times I've seen people who are practicing bhakti, they are full of emotional instability. एक इमोशन यहाँ जाएगा, दूसरे 5 मिनट बाद इमोशन यहाँ जाएगा. There is no emotional stability there. If you are actually practicing bhakti yoga, you will be absolutely stable in your emotions. That comes when you are healed your heart completely with all the emotions. So that is what I'm trying to say, the emphasis or the significance of bhakti and the bhav. Yes? Very good. Let's acknowledge Rupa. Very good. All right. Anybody else who wants to share or anything opening up for you? Anirudh ji, Tarun ji, आपने कुछ नहीं बोला आज. शैलेंद्र जी, देवेश जी, अमित जी, anything you want to share? Last and final call. Few minutes left. Yes, Parina, you want to share something? Shashi ji, I just want to thank you for today's session. This is actually, it's been very insightful. Like इस तरीके से इसको सोचना और उसको ये ऐसा है कि जैसे भक्ति हम अपने अपने तरीके से सब करते आए हैं, बट दिस इज लाइक एडिंग मोर मीनिंग टू व्हाट दैट वी आर डूइंग, लाइक लिविंग इट फुली. सो थैंक यू. अब इस नजरिए से देखना एक इट्स अ डिफरेंट एक्सरसाइज इन इटसेल्फ, but this has actually been an eye opener and quite an insightful session. So Wonderful. thank you for this. Wonderful. That is how you need to actually move on your spiritual journey. Wonderful. Very good. Great. Last and final call. Anybody else who wants to share? Simi ji, last thoughts. Yeah, sir, this is really पर्सपेक्टिव ही पूरा चेंज हो जाता है कि अभी हम भगवान को भी हम किसी दूसरे रूप में देख सकते हैं. भगवान को भी एक पर्सपेक्टिव की तरफ से तरीके से देख सकते हैं. ये एक चीज कभी सोची नहीं. कभी मंदिर गए, दिया जलाया, कुछ वो किया और वापस आ गए. जो एक डिविनिटी आनी चाहिए वो ऐसी कभी महसूस ही नहीं हुई. ऐसा लगा जैसे बस ये रिचुअल है, मम्मी ने बोला था, मम्मी ऐसा कर रही थी, अब मेरे को ये करना है, उसके बाद बाहर आ जाओ. लाइक दो फीलिंग्स जो आने चाहिए वो कभी उस फीलिंग्स से. मैं अभी कुछ दिनों से यही सोच रही थी कि जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते टाइम भी हमारी फीलिंग्स होनी चाहिए. ऐसा क्या हम करें जिससे फीलिंग्स इवोक हो, तो वो मुझे समझ नहीं आ रही थी. तो देयर आई वाज कंफ्यूज्ड, तभी मैंने वो क्वेरी डाली थी. Very नाउ good. Very good. थिंग्स आर क्लियर, काफी हद तक क्लियर है, बट Yeah. स्टिल थोड़ी कंफ्यूजन्स हैं. देखते धीरे धीरे वो भी आ That's fine. जाएगा. Absolutely fine. See, you have to understand, Bhakti Yoga is only about healing your emotions and healing your heart. उसके लिए आपको कौन सा फॉर्म चूज करना है, चूज कर लो. पूरी चॉइस है आपके पास. Correct? And that answers your question कि why one form? Not necessarily one form. You can take as many forms as you want. Divine Father, Divine Mother, Divine Son, Divine Friend, Divine Lover, and Divine Lord, whom you are going to serve. And then see those happening in your actual life experiences. Then you would have done justice to your practice of bhakti. Correct? Very good, Simiji. That's a very good understanding. थैंक यू. थैंक यू. Great. Anybody else? Yes, I Gunjan. just want to say that थैंक यू there's शशि a- जी फॉर दिस इंसाइटफुल. एक्चुअली क्या है कि हम बहुत बार पूजा तो करते हैं और शायद ये भाव से भी करते हैं. जैसे मैं गणेश जी को ला के आता हूँ या कृष्ण जी को बैठाते हैं जब माखन ये जन्माष्टमी वाले दिन, तो ये फीलिंग आती है, ये भाव आता ही है, बाय डिफॉल्ट आ जाता है कि यार वो हमारे बच्चे की तरह है, उनको प्रोटेक्ट करना है. बट शायद वो कंटिन्यू नहीं रह पाता. लेकिन आज आपकी बात सुनने के बाद लगा, क्योंकि मैं भी लॉर्ड शिवा इज माय ईस्ट, तो मैं उनको करता हूँ. तो कई बारी मैंने गुस्सा भी किया उनको, लॉर्ड शिवा को 2-3 बारी मेरा मतलब झगड़ा भी हुआ है कि यार ये क्यों किया मेरे साथ ऐसा. ठीक है, वो समझ में आता है कि यार ही इज द राइटेस्ट पावर एंड ही विल एक्चुअली डू व्हाट द बेस्ट इज फॉर मी. वो समझ में आ जाता है थोड़े दिनों के बाद, ये रियलाइजेशन हो जाता है. बट वो एक फीलिंग जो होती है दोस्त वाली या गुस्से वाली, भाई हम अपने जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उसी को गुस्सा करेंगे ना, तो वो भी फीलिंग आती है कि बट वो हाँ ठीक है. बट आपका सेशन मैंने बहुत बारी सुना, कई बारी क्या है कि वो माइक ऑन नहीं हो पाता, तो मैं आपको लास्ट में दिया थैंक यू शेयर नहीं कह पाता, तो ग्रेटिट्यूड कहना चाहिए कि बहुत कुछ सीखा आपसे, अमित जी के थ्रू कनेक्ट हुआ मैं बहुत बारी और बहुत इंसाइटफुल चीजें सुनी. बिकॉज शायद बचपन से आई वॉज इन क्लास 3rd, तो मेरी माँ ने मुझे हनुमान चालीसा दी थी कि मैं पास हूं या नहीं हूं, यू हैव टू रीड दिस.
तो मैं हनुमान चालीसा क्लास 3rd से पढ़ रहा हूँ और मुझे सब याद था। तो जब इंटरेस्ट हुआ कि हनुमान जी कौन है, तो इंटरेस्ट जागा। फिर पता लगा कि यार वो शिव जी के अवतार है। फिर शिव जी में इंटरेस्ट जागा कि यार शिव जी कौन है। तो देन आई वेंट इनटू दिस टाइप ऑफ, मतलब रिलीजियस थोड़ा हुआ कि क्या है, कैसे है। अच्छा, भगवान की दया से शायद मेरी माँ के संस्कार ऐसे हैं कि मैंने कभी आज तक चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स कभी टेस्ट नहीं की। उन्होंने कभी हमें मतलब मुझे दिया ही नहीं, तो मैंने कभी भी आई नहीं। आज भी हमारे घर में भोग लगता है वैष्णो माँ को, ठाकुर जी को, तो प्याज लहसुन भी हम नहीं खाते हैं। 2014 से मैंने वो भी छोड़ दिया। आई एम इनटू इंश्योरेंस। मेरा काम भी थोड़ा सा ऐसा है कि भगवान की कितनी कृपा रही है कि व्हेन आई वेंट फॉर अवार्ड्स, फॉर इंटरनेशनल अवार्ड्स, अब तक मैं 435 अवार्ड्स ले चुका हूँ, नेशनल इंटरनेशनल, थ्रू आउट माई करियर इन 31 ईयर्स। तो इंटरनेशनल अवार्ड भी होता है। तो हर इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि इसकी टिकट जैन फूड से बुक होनी है, बिकॉज ही डजंट टेक अनियन गार्लिक। एंड वहां पे भी शेफ का अरेंजमेंट मैं बुला लेता हूँ, वो बना देता है, एकदम सात्विक खाना बन जाता है हर जगह। और पता नहीं, दुनिया में बहुत लोग कहते हैं कि यार आप बाहर कैसे मैनेज कर लेते हो। मैंने कहा यार आपके अंदर अगर हो कि आपने नहीं खाना तो आपको मिल जाएगा। आप फ्रूट्स मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, नॉट एन बिग डील। बट वो शायद मैं समझता हूँ कि शायद मेरी माँ के संस्कार ऐसे थे, उन्होंने ऐसा परवरिश की। तो और मैं मतलब पूरी फैमिली में आई एम द ओनली पर्सन हु डजंट टेक एनी alcoholic or non-veg and something like Good, that. Shailendra ji. So you have a sattvic lifestyle and Bhakti Yoga is there in your sanskar, but then it is time for you to move on to the higher levels. Bhakti Yoga सिर्फ हार्ट चक्र पे है. You should go to the third eye chakra and the crown chakra. Spiritual journey वहाँ पे शुरू होती है ना? So let's have a one-to-one. Maybe we can connect tomorrow and I can see what else is possible for you, right? But absolutely great, wonderful to hear you for the first time. I'm hearing you for the first time, by the way. Yes. Yes. Good. Thank you. Keep attending the Wednesday meet, and I'm sure you will see something absolutely great for you. Might be this the third session. वो कहीं ना कहीं से कनेक्ट हुआ। जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो बहुत थोड़ा सा सुन पाया था, मैं बहुत लेट थोड़ा सा ज्वाइन किया। कई बार क्या होता है, मीटिंग्स में होते हैं, ये होता है। आज भी मैंने सेशन आधे घंटे बाद देखा, मैंने कहा लिंक आया हुआ है, मैं उसी टाइम ज्वाइन कर दूं। कुछ काम कर रहा था, मैंने उसको छोड़ा, मैंने कहा यार पहले मैं ज्वाइन कर लूं कि कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बार क्या होता है ना, व्हेन यू आर एबल टू लर्न। आई हैव नेवर मिस्ड द इंश्योरेंस ट्रेनिंग, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बारी आप नई चीजें सीखने को आपको मिलती हैं। तो जब नई चीजें आप तक, जब अपने आप को, जैसे वो कहते हैं ना, हर उसमें फ्रेश ब्लड चाहिए भाई। आप फ्रेश कस्टमर्स आते हैं, फिर सब कुछ आता है, तो आपको फ्रेश चीजें चाहिए आपको इवॉल्व करने के लिए। तो वो माइट बी कोई ना कोई करेक्शन होगा आपकी आत्मा का, मेरी आत्मा का, कहीं ना कहीं हम मिल रहे होंगे कुछ ना कुछ। Great, wonderful, Shailendra ji. Nice meeting, nice to hear from you. I'll definitely connect with you tomorrow. Big applause for Shailendra ji. Thank you. Thank you, Yes, Shashi ji. thank you. Welcome. Yes, anybody else? So we have reached the scheduled close of time, like 2 minutes over time. That's fine. So last and final call. और कोई share करना चाह रहे हैं? Otherwise we will close the session. Okay, so thank you very much for your participation. Enjoy a great day, enjoy a great week, and I hope this session was valuable to all of you. Enjoy a great week. We meet again next week with a lot more actions on Bhakti Yoga. Till then, Aham Brahmasmi. Enjoy, take care, good night. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Thank you. Take care, bye.